this is Preeti Gupta and welcome to my channel School Time. In this video, we will discuss about class 7, chapter 1, nutrition in plant. And today's our topic is second mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. Last class में हमने ये जाना था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, what is nutrition, what is nutrient, what is life process, what is autotrophic mode of nutrition, and what is photosynthesis. And today's topic is heterotrophic mode of nutrition, that is second mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Heterotroph is a combination of two word. Heterotroph word जो है वो दो word का combination है, that is heteros means other and troph means nourishment. It means ये दूसरे से जो nourishment पाते हैं, that is heterotrophs. Heterotrophs are organisms that cannot prepare their own food and derive food from plants and animal or both. Heterotroph वैसे ऑर्गेनिज्म है जो वो अपने फूड को खुद से ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो अपने फूड के लिए ड्राइव करते हैं दूसरे प्लांट और एनिमल पे, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम प्लांट wheat, rice, pulse, vegetable and fruit. Plants in the form of wheat, rice, pulse, vegetables and fruits में, and from animal in the form of milk, curd, cheese, eggs and meat. So heterotroph is a combination of two words, that is hetero means other and troph means nourishment. Heterotroph वैसे organism है which cannot prepare their own food and for the purpose of food they derived on other plants and animals, that are heterotroph. From plant in the form of wheat, rice, pulse, vegetables and fruit, and from animal in the form of milk, curd, cheese, egg and meat. बेसिकली हम जानते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं दैट आर ऑटोट्रॉफ, पर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके लीफ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं होने की वजह से वो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. तो फिर वो प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं? तो वो प्लांट जो होते हैं लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स अदर प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Some plant which cannot prepare their own food because these plants do not contain chlorophyll. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लीफ में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. Such plant depend on other plant for the purpose of food कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऐसे प्लांट होते हैं दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 4 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट. 4 तरह के हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स, सेकेंड है सैप्रोफाइटिक प्लांट, थर्ड है इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, और 4 है सिम्बायोटिक प्लांट्स. Parasitic plant. The word parasitic is a combination of two word. Parasitic word जो है वो दो word का combination है. Para means other and cytic means dependent. It means जो दूसरे पे dependent होते हैं, that is parasitic. The plant which live and other living organism and obtain their food from them are called parasitic plants. वैसे प्लांट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड parasitic plant. That living organism from which a parasite derive its food is called host. और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से या जिस प्लांट से वो प्लांट अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल है कसकटा और डॉडर प्लांट. These dodder plant produce yellow tubular structure which attach themselves to a plant and wrap them around the stem and the branches. Its leaves are reduced to minute scale. ये डॉडर प्लांट जो है येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है जो कि अटैच हो जाता है होस्ट प्लांट से अटैच हो जाता है और उसके स्टेम और ब्रांचेस पे पूरी तरह से रैप हो जाता है और इसका रेड्यूस कर जाता है लीफ माइन्यूट स्केल में. क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लांट. डॉडर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर नहीं कर पाता है, दैट इज वाई इट इज पैरासाइटिक प्लांट. इट एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड फ्रॉम
होस्ट प्लांट। ये रेडीमेड फूड कहाँ से पाता है? अपने होस्ट प्लांट से पाता है। हॉस्टोरिया, अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। ये हॉस्टोरिया जो है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है पैरासाइटिक प्लांट का। ये क्या करता है? होस्ट प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करता है। डॉटर प्लांट प्रोड्यूस करता है येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि रैप हो जाता है होस्ट प्लांट स्टेम एंड ब्रांचेस पे। डॉटर प्लांट में एब्सेंस होता है क्लोरोफिल का, तो इन्हें फूड कहाँ से मिलता है? ये डॉटर प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज़ हॉस्टोरिया, और हॉस्टोरिया जो है होस्ट प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डॉटर प्लांट प्रोड्यूस करता है येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जो होस्ट प्लांट के स्टेम और ब्रांचेस पे पूरी तरह से रैप हो जाता है, और डॉटर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है? वो होस्ट प्लांट से रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है। उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया पाया जाता है जिससे वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज पैरासाइटिक प्लांट्स। सेकेंड है सैप्रोफाइटिक प्लांट। द वर्ड सैप्रोफाइटिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। सैप्रोफाइटिक जो है वर्ड वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। सैप्रो मीन्स डिकेइंग मैटर एंड फाइटो मीन्स प्लांट। सैप्रो मीन्स डिकेइंग मैटर, क्षयकारी पदार्थ, and phytos means plant. Saprophytic plants are those plants that live and feed on dead and organic matter. Saprophytic plant वैसे प्लांट है जो जीवित रहते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन पाके। मेनी बैक्टीरिया एंड फंगी आर सैप्रोफाइटिक प्लांट। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी जो है सैप्रोफाइटिक प्लांट के एग्जाम्पल है। इट लैक्स ग्रीन कलर, इसमें ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है, इट मीन्स क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इट मीन्स इट डज नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट नहीं करता है। सैप्रोफाइटिक फंगी, सैप्रोफाइटिक फंगी जो होता है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर पे जो होता है सैप्रोफाइटिक फंगी जो है वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर देता है। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होने के बाद ये डेड और डिकेइंग मैटर जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन में बदल जाता है, और इस सॉल्यूशन से जो है सैप्रोफाइटिक प्लांट जो है अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दे एब्जॉर्ब दीज लिक्विड एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। इसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट इज सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड फाइटोस मीन्स प्लांट। और सैप्रोफाइटिक वैसे प्लांट हैं जो जीवित रहने के लिए फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को। सैप्रोफाइटिक फंगी जो है सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे और उसे कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन से जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल में है मशरूम, माउल्ड, यीस्ट एंड फंगी। The growth of fungi are commonly seen in rainy season and humid weather. रेनी सीजन और ह्यूमिड वेदर में ही फंगी के ग्रोथ को ज़्यादातर देखा जाता है। मशरूम ऑल्सो ग्रो इन नेचर इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन, ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड पीसेस। ऑल मशरूम आर नॉट एडिबल। जितने भी मशरूम होते हैं वो खाने लायक नहीं होते हैं। मार्केट में जो अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर, वाइटिस अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर वाले मशरूम होते हैं दैट वाज एडिबल, और उसे अभी लार्ज स्केल पे उसकी खेती की जाती है, इसलिए वो
एडिबल होते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि रॉटिंग वुड पे कभी किसी ने देखा होगा कि रेनी सीजन में रॉटिंग वुड है, उस पे एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर वाइटिश स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ ऑल्सो मशरूम, बट दैट वॉज नॉट एडिबल, वो एडिबल नहीं होता है। अनयूज लेदर शूज एंड बैग लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, देन वी विल फाइंड वाइट पैचेस अपीयर्स ऑन इट कॉल्ड फंगी। अनयूज लेदर और शूज़ और बैग्स काफ़ी डे तक अगर उसे हम हमेशा क्लीन नहीं करते रहे, वैसे ही छोड़ दें, तो हम उस पर पाएंगे कि अगर वेदर ह्यूमिड है तो हम देखेंगे उस पर वाइट पैचेस आ जाते हैं, एंड दैट इज़ फंगी, वो फंगी कहलाते हैं। थर्ड है इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड और कार्निवोरस प्लांट, प्लांट विच ईट एनिमल particularly insect are called insectivorous और carnivorous plant। वैसे प्लांट जो एनिमल पार्टिकुलरली इंसेक्ट्स को खाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इन शॉर्ट दीज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, शॉर्ट में इसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी कहते हैं। दीज प्लांट आर यूजुअली ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये प्लांट ग्रीन होते हैं और अपने फूड को बनाते हैं। देन वाई डू दे ईट इंसेक्ट, जब ये प्लांट ग्रीन है और अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? दैट इज़ बिकॉज सम एरियाज द सोइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, कुछ एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में, एंड द ग्रोइंग प्लांट and the plants growing in such areas need to obtain nitrogen from outside source. This is done by trapping and eating insect। और वहाँ पे ग्रो करने वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को आउट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसे न्यूट्रिएंट पाते हैं। Insectivorous plant are the plant that derive their nutrition by consuming insect and other organism। इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे प्लांट हैं जो अपने न्यूट्रिशन को इंसेक्ट को कंज्यूम करके पाते हैं। दीज प्लांट ग्रो इन ह्यूमिड एरियाज, ऐसे प्लांट जो हैं ह्यूमिड एरिया में ग्रो करते हैं, वेयर प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड मॉइस्चर इज फाउंड, जहाँ पे सूर्य की प्रचुर मात्रा में सनलाइट आएंगे, रोशनी आएगी और वहाँ पे मॉइस्चर भी रहता है। ऐसे कंडीशन में जो सॉइल होता है मॉइस्ट सॉइल, उसे न्यूट्रिएंट स्कैर्स कर जाते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए वो जो है इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और उसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल में है वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, कोबरा लिली। दे आर ऑफन कॉल्ड कार्निवोरस, इसे कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है वेनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट को। इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिससे वो इंसेक्ट को कैच कर पाते हैं। एग्जाम्पल में है इन अ पीचर प्लांट, the peach-like structure is modified part of the leaf and the leaf is modified to form a lid which can open and close the mouth of the peacher. Inside the peacher, downward pointing hair are present, and insect enter the peacher, the lid closes and the insect get trapped in the hair. Digestive juice secreted in the peacher now digest the insect। पीचर प्लांट में क्या होता है, लीफ मॉडिफाइड हो जाता है पीचर स्ट्रक्चर में, मटकी नुमा, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। लीफ कन्वर्ट हो जाता है मटकी नुमा स्ट्रक्चर में और उसका टिप ऑफ लीफ जो होता है वो लीड का काम करता है, वो लीड में कन्वर्ट हो जाता है। इंसेक्ट जैसे ही उस पीचर में एंटर करते हैं वो ऊपर का लिड बंद हो जाता है, लीड बंद हो जाता है, फिर वहाँ पे डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर पाए जाते हैं जिसमें इंसेक्ट फंस जाते हैं और पीचर से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और उससे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उससे न्यूट्रिएंट पा लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट, प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट,
वैसे प्लांट दूसरे प्लांट के साथ साझा करके रहते हैं, मीन्स दोनों को बेनिफिट होता है, दैट इज सिम्बायोटिक प्लांट। शेयर शेल्टर न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट। वैसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, शेयर करते हैं शेल्टर को, न्यूट्रिएंट को, उसे सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशन होता है एक दूसरे के प्रति साझा का, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बोथ द प्लांट बेनिफिट फ्रॉम ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन में जो दोनों प्लांट होते हैं, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में लीजेंस का दिखाया गया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज सीन हियर। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन अलगा एंड नॉन ग्रीन फल्गी। यहाँ पे जो है एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है ग्रीन अलगा में और नॉन ग्रीन फंगस में। ग्रीन अलगा प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन अलगा जो है वो फूड को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से, एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और फूड जो है फंगस को प्रोवाइड करता है इन रिटर्न ऑफ दैट फूड। उस फूड के रिटर्न में फंगस क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल टू द अलगा। मीन्स सिम्बायोटिक प्लांट जो है इसमें दोनों प्लांट एसोसिएशन रहता है। अगर एक उसे फूड देता है तो दूसरा उसे न्यूट्रिएंट देता है, फिल्टर देता है। इसमें दोनों ही प्लांट को बेनिफिट मिलता है, दैट इज सिम्बायोटिक प्लांट। अब एक एक्टिविटी है, इसमें हम देखेंगे फंगस की ग्रोथ को। एक ग्लास प्लेट पे हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसे वाटर से थोड़ा मॉइस्चन कर देंगे और उस ब्रेड स्लाइस को मोस्ट वार्म वाटर प्लेस पे 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। यू विल एब्जॉर्ब, आप देखिएगा, वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन द ब्रेड स्लाइस लाइक दिस। ब्रेड पे ऐसे वाइट कॉटन की तरह ग्रोथ होंगे जिसे हम फंगस कहते हैं, एंड दैट इज ब्रेड मोल्ड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दीज ऑल टॉपिक्स। बट आपको कोई क्वेरीज होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।